الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ نہ قریب جاؤ تم نماز کے وانتم سکارى جب ہو تم نشے کی حالت میں حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو ولا جنباً اور نہ جنابت کی حالت میں الا عابری سبیل سوائے اس کے جو ہو سفر میں حتیٰ تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر ہو تم میں سے کوئی مریض أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا ہو کوئی سفر پر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا کوئی آئے تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا چھوا ہو کسی نے عورتوں کو فلم تجدوا ماء پس نہ پاؤ تم پانی فتیمموا صعیدا طیبا پس تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ فامسحوا بوجوہکم پس چھو مسح کرو اپنے منہوں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا درگزر کرنے والا معاف کرنے والا. جی اب یہاں پر آیا کہ اس کے تیمم کے جو ہے آ رہے احکام کہ اگر تم پہلے آیا کہ شراب کی حالت میں اگر ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. پہلے شروع اسلام میں شراب جو ہے حلال تھی کیونکہ پہلے سے حلال ہی تھی چلتی آ رہی تھی منع نہیں کی گئی تھی حلال ہی قرار دی تھی یعنی ابھی شروعات اسلام میں منع نہیں کی گئی تھی کیونکہ پہلے سے چلتی آ رہی تھی تو اس کی ممانت کے ابھی وہ نہیں آئے تھے. تو صحابہ کرام ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی صحابی کے دعوت پر تھے اور انہوں نے اس میں شراب ہمیں پلائی تو اس کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ شراب جڑتی ہے تو انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا. تو کہتے پھر نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے مجھے نماز کے لیے امام بنا دیا. دعوت ہو رہی تھی امامت کے لیے کھڑا کر دیا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے. تو اس کے اندر میں نے سورۃ الکافرون پڑھی تو اس کی جگہ پر آگے جا کے غلط پڑھ دی. کس طرح سے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ان لفظوں کو غلط کر دیا کیونکہ وہ شراب کے نشے میں تھے. تو حالانکہ جان بوجھ کر نہیں کیا انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا شراب کی وجہ سے اس میں کر دیا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب شراب کی تم نے جو ہے جب تک شراب کے اس میں تم نے اس کے قریب نہیں جانا نماز کے تو پھر منع ہی کر دی گئی. جب ممانت آئی حرام کر دی گئی شراب اسلام میں تو جب اس کے احکام نازل ہوئے تو صحابہ کرام نے اس طرح سے شرابیں اپنے گھروں سے بہا دی اور آتا ہے کہ گلیوں کے اندر شراب ہی شراب ہو گئی. یعنی انہوں نے اتنا حکم جیسے کہ سنا اور فوراً سے عمل کر دیا اور اپنے جو سیو کی ہوئی تھی شرابیں وہ ایسے بہا دی گلیوں کے اندر جس طرح نالی بن جاتی پوری گلیاں اس میں جو ہے شراب ہی شراب بہنا شروع ہو گئی. پھر آگے کیا آتا ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو کیا ہے یا غسل جب تک نہ کر لو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر کیا آتا ہے کہ اگر سفر میں ہو یا کوئی تمہارے میں سے قضائے حاجت سے آئے یعنی واش روم وغیرہ کرنے کے بعد بھی تمہیں وضو کرنا لازم ہے اور یا عورتوں کو چھونا. عورتوں کو صرف اگر آپ نے چھوا ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا یعنی کہ اپنے ساتھی کو آپ نے صرف چھوا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا. تو ایک دفعہ یہ حدیث آتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کا پاؤں اپنے ہاتھ سے نماز سے دے کے آنے میں پیچھے کر دیا کرتے تھے. تو یہ چیز کہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اگر آپ پانی کو جو ہے نہ پائیں تو پھر کیا کریں تیمم کر لیں. تیمم کا طریقہ یہ ہے پاک مٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو بھوک مار دیا اور پھر کیا کرنا ہے منہ کے اوپر پھیرنا ہے اور پھر سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر اپنے پھیر کے آپ کا وضو ہو جائے گا. بعد میں وضو کی دعا پڑھ لینی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے سفر میں تھے تو ان کو احتلام ہوا تو ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا تو ان کو یہ والی آیت یاد آئی کہ جو ہے تیمم کرنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا تیمم کا طریقہ کیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہوئے اور سارا اپنے آپ کو مٹی سے بھر لیا اور پھر نماز پڑھی. ان کو لگا کہ شاید جس طرح غسل کرتے ہیں پورے جسم کے اوپر پانی سے نہاتے ہیں تو شاید مٹی سے بھی پورا نہانا ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم اپنے منہ کے اوپر پھیرتے اور ہاتھوں کے اوپر اس طرح سے پھیر لیتے اور مٹی جو ہے پاک ہونی چاہیے. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ
अलम तरा इलल लज़ीना, क्या देखा नहीं तूने उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबन मिनल किताबी, जो दिए गए एक हिस्सा किताब में से, यश्तरून ज़लालता, वो खरीदते हैं गुमराही को, व युरीदून अन तज़िल्लु सबील, और इरादा करते हैं कि तुम्हें फेर दे रास्ते से, भटका दे तुम्हें रास्ते से, वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम, और अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है तुम्हारे दुश्मनों को, व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्या, और अल्लाह काफ़ी है दोस्त, व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह ताला काफ़ी है मददगार। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही व यक़ूलून समिअना व असैना। मिनल्लज़ीना हादू, उन लोगों में से जो यहूदी हुए, युहर्रिफूनल कलिमा, फेर देते हैं वो बातों को, अम मवाज़िही, उनकी जगहों से, व यक़ूलून समिअना, और वो कहते हैं सुना हमने, व असैना, और नाफरमानी की हमने, वस्मा गैर मुस्मिअ, और सुनो ना सुन सकेगा तू, ना सुन सके तू, व राइना लय्यम बि अलसिनतिहिम, और राइना रायत करें हम पर, लय्यम बि अलसिनतिहिम, और लफ्ज़ राइना कहते हैं अपने ज़बानों को मोड़ कर, वताअनन फिद्दीन, और ताना देते दीन में, वलौ अन्नहुम, और अगर होते वो कालू कहते, समिअना, सुना हमने, व अताना, और अताअत की हमने, वस्मा, और सुने, वंजुरना, और देखे हमारी तरफ, लकान खैरल लहुम व अक़वमा, और ज़रूर ये बेहतर होता उनके लिए और ज़्यादा दुरुस्त होता, वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, और लेकिन लानत की अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से, फला युमिनूना इल्ला कलीला, बस नहीं वो ईमान लाते मगर थोड़े। अब ये यहूदी क्या करते हैं, इसका हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वो अपनी बातों किताबों में से क्या करते, बातों को फेर के कहीं और लिख देते, जगहों से फेर देते और उनको मिटा देते, और या फिर क्या करते, ज़बानों को मोड़ के ऐसा लफ्ज़ बोल देते जिसका मतलब कुछ और होता और बोलने में वो कुछ और लग रहा होता। जिस तरह से यहाँ पर कहते हैं आप सल्लम जब बयान तो करते तो उसको कह देते समीना, हमने सुन लिया, और फिर बाद में क्या कह देते हैं कि हमने नाफरमानी की, और फिर कहते वस्मा गैर मुस्मिअ, इसमें ये कहते हैं कि सुनो कि कोई तुम्हें सुना ना सके, यानी कि मतलब इसका सीधा जो मतलब होता सामने का वो ये लगता कि तुम्हें कोई बुरी बात ना सुना सके, तुम सुनो और तुम्हें कोई सुना ना सके, लेकिन खुद इनका मतलब क्या होता कहने का, असल इनकी नीयत क्या होती कि तुम गूंगे और बहरे हो जाओ, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह से उनका मतलब होता है। राइना का हमने पहले भी पढ़ा था कि वो राइना करके इसके अंदर या का इजाफा करके तो उसका मतलब चरवाहा कहते, और फिर क्या अपनी ज़बानों को मोड़ तोड़ देते, वताअनन फिद्दीन, और ताना देते दीन में, वो इस तरह से कि कहते देखो ज़रा ये अगर नबी होता तो इसको पता चल जाता कि हम ज़बानों को मोड़ के इसके लिए क्या बोल रहे हैं, हम तो यानी कि इस तरह से बोल रहे हैं, इसको तो पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह ने जब कुरान नाजिल करके बता दिया तो ये भी उनके वाज़िह दलील होगी कि ये दीन सच्चा है, अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया। नबी गैब नहीं जानते लेकिन अल्लाह बताने पे कादिर है। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, ऐ लोगो जो दिए गए हो किताब, ईमान लाओ, बिमा नज़्ज़लना, जो नाजिल किया हमने, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, तस्दीक करने वाला है उनकी जो तुम्हारे पास है, मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन, इससे पहले कि मिटा दे हम तुम्हारे चेहरों को, फनरुद्दहा अला अदबारिहा, या फिर कर दे तुमको तुम्हारी पीठों की तरह, यानी कि इस तरह से सीधा जिस तरह करने पे कादिर है, तुम्हारे चेहरों को ऐसे बिगाड़ने पे भी कादिर है, मिटाने पे भी कादिर है, जैसे तुम्हारी पीठें बिल्कुल सीधी हैं, इस तरह हम तुम्हारे चेहरों को भी करने पर अल्लाह कह रहे हैं कादिर है। तो इससे पहले क्या है, लौट आओ, औ नल अनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्ती, या हम लानत करें उन पर जैसा कि लानत की हफ्ते वालों पर, यानी कि वो जो हमने पीछे पढ़ा ना हफ्ते के दिन वालों पर, जिस तरह अल्लाह ने लानत की, उनको बंदर बना दिया, तो इसी तरह से कह रहे हैं, या तो अल्लाह कह रहे हैं इससे पहले लौट आओ कि हम भी उनकी तरह तुम पर लानत कर दें। वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह ताला का हुक्म जो है पूरा होने वाला है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ़ करता कि शरीक ठहराया जाए उसके साथ, व यग़फ़िरु मा दूना, और वो ज़ालिक, और माफ़ कर देता है जो उसके अलावा है, लिमन यशाउ, जिसको चाहता है, यानी जिसके लिए चाहता है, और तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक उसकी तौबा ना कर ली जाए, और तौबा तब तक ही हो सकती है जब तक हमारे सांस चल रहे हैं। अगर हम शिर्क की हालत में ही फौत हो जाते हैं, अगरचा हम मुसलमान कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा रहे हैं, गैरुल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, गैरुल्लाह की मान रहे हैं, तो हम माफ़ नहीं होंगे, हमारे लिए माफ़ी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जिसका चाहना है वहाँ पे अल्लाह ताला ने गुनाह माफ़ कर देने, चाहे अल्लाह ताला तो किसी के बड़े गुनाह भी माफ़ कर दे, लेकिन शिरक को अल्लाह ताला ने किसी सूरत माफ़ नहीं करना। वमन युश्रिक बिल्लाही,
पर जो शख्स शरीक ठहराए अल्लाह ताला के साथ फ़क़द इफ्तरा इस्मम मुबीना, पस बांधा उसने बहुत बड़ा गुनाह। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या देखा तूने उन लोगों की तरफ, अलम तरा इलल लज़ीना, क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ जो कहते हैं अपने आप को पाक, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ, बल्कि अल्लाह पाक करता है जिसको चाहता है, वला युज़लमूना फ़तीला, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे धागे के बराबर भी। फतीला कहते हैं जो खजूर की गुठली के अंदर जो झिल्ली सी होती है उतना बारीक, यानी कि उस तरह के धागे के बराबर भी उन पर इतना सा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह, और ये यहूदी कहा करते थे कि हम तो पाक और मुकद्दस लोग हैं, हमें आग में नहीं डाला जाएगा, हम बख्शे बख्शवाए हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं शिरक करके आओगे, इस तरह के काम करके आओगे तो तुम बख्शिश का मेरे से वो ना करना। अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक करता है, कोई खुद पाक नहीं हो सकता। उन्जुर कैफा यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, देखिए कैसे वो किस तरह बांधते हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ। वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना, और काफ़ी है उनके लिए ये ज़ाहिरी गुनाह, यानी कि उनके लिए उनके गुनाहगार होने के लिए, झूठा होने के लिए यही काफ़ी है। और ये जो पाक करने वाले वो कहते हैं खुद को पाक करना वाला है, कि वो यहूदी कहा करते हैं कि हम पाक और मुकद्दस हैं। और इसी तरह से इसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अपनी भी इस तरह तारीफ़ ना करे बढ़ चढ़कर, और कोई दूसरा भी किसी की इस तरह से जिसके अंदर मुबालगा हो, और अगर किसी की तारीफ़ करनी हो तो उसके बारे में, यानी कि वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो उसके बारे में कहे कि मुझे गुमान होता है कि तुम्हारे अंदर ये है। और अल्लाह इस तरह वो फिर ये कह लें कि अल्लाह के साथ वो बनाने वाली बात होती है, शरीक ठहराने वाली, क्योंकि जो दिया है अल्लाह ताला ने दिया। किसी के अंदर भी अगर कोई भलाई नज़र आती है तो वो अल्लाह ने दिया, और कोई भी मुकम्मल पाक नहीं हो सकता अम्बिया के अलावा, ये हमारा ईमान है। तो इसलिए किसी को भी नहीं कहना कि तुम बहुत पाक हो, या खुद को कभी नहीं कहना कि मैं बहुत पाक हूँ। अल्लाह ताला पाक करे हमारे गुनाहों को, लेकिन मुकम्मल पाक हम नहीं हो सकते, इसलिए हमें हर टाइम इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साथ माफ़ फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। ये जब शराब की ममानत हुई है, ये सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 219 में जब आया था शराब और जुए के करीब ना जाओ, जुआ जो है, शराब और जुआ गुनाह के काम है, इनका नफ़ा जो है नफ़ा थोड़ा है, इसके गुनाह जो है ज़्यादा है, इसके अंदर जो बुराई है वो ज़्यादा है। लोग कहते हैं ना कि ये भी तो अंगूरों से बनती है, और इस तरह भी बड़ी वो देते हैं वजाहतें, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसका जो इसके अंदर तुम लोग को फ़ायदा नज़र आता है वो थोड़ा है, तो इसके अंदर जो गुनाह और इसका नुकसान है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको छोड़ दो। बर्तन जी।